ओके बच्चों, इससे पहले अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड अवर फॉरेन ट्रेड. How Britishers affected our industrial sector, how they affected our industries, how they affected our foreign trade. Now we are going to start with occupational structure. What was the state of occupational structure at the time of Britishers? The next one is occupational structure means कौन कौन से काम, कौन कौन से बिजनेस की तरह लोग यहाँ पे कर रहे हैं, which works are done by the labor force. That means distribution of the labor force in the three main sectors. Primary sector, that means we can say that agriculture sector. Secondary sector, in which we can include manufacturing sector or industrial sector, and the third one is tertiary sector, that is services. Then here comes agriculture was the principal source of occupation at that time. We can see that 75% agriculture sector, 15% service sector, and the last but not the least, manufacturing sector. Very less population was involved in the manufacturing sector, very less, and mostly people were engaged in agriculture sector at the time of colonial government. It gave the unbalanced growth, regional variation, different regions. In different regions, people were occupied in different works. In Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra, and West Bengal, people were engaged in manufacturing sector as well as services sector, and the share of workforce was decreased in the agriculture sector in these states. Apart from these states, when we come to the states of Orissa, Rajasthan and Punjab, in these three states, we can see that the agriculture sector, workforce in the agriculture sector increased a lot. That means in these states, workforce was less in manufacturing sector and tertiary sector, that means service sector. Then we come to demographic profile. Demographic profile का मतलब हम लोग यहाँ here we talk about the population कितनी थी, death rate कितना था, birth rate कितना था, sex ratio कितना है, literacy rate कितना है. So these are some things which we'll study in demographic profile. Now, state of demographic profile on the eve of independence. You can learn it by a PILL, PIL. P means poverty, I means illiteracy, L means lack of public health facilities, L means low population growth. First, we'll study about poverty. Poverty, we know that at that time India was very poor. People were very poor in India. There was no reliable data, although we cannot say that a data was with us कि हाँ इतने % लोग poverty line के नीचे थे, poor थे. We are not having any reliable data, but we know that at the time of colonial period, India was extensively poor, and the standard of living of the common person was also very low. And illiteracy, we see that the literacy rate was as low as, which reflects the social and economic backwardness of the country. People were not literate in our country. We can see the social and economic backwardness. Economic backwardness, पैसे के मामले में भी हम लोग बहुत backward थे. Society के मामले में भी हम लोग बहुत backward थे, because there was very less people who were literate. We can see that the average literacy rate is only 16%, and out of which women literacy rate was only 7%. Women were very less educated. And about the public health facility, at that time public health facility was also not good. Public health means there was no sanitation facilities, no clean drinking water. These things was not there, unavailable, because there was a large population, mass of people lived here, and they were not economically so good that they can these people can do something good for them. But Britishers did not do anything good for them. Britishers did everything for their own economic benefit. As a result of this lack of public health facility, water and airborne diseases widespread. बहुत ज़्यादा हो गए थे waterborne diseases और airborne diseases like malaria, diarrhea. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. Diarrhea, you can say डेंगू, मच्छर से भी था ऑब्वियसली. जब हमारे जो भी, अगर हमारी हवा साफ नहीं है, गंदगी है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी वर नॉट हैविंग वेरी गुड मेडिकल फैसिलिटी. इफ वी वुड हैविंग मेडिकल फैसिलिटी, वी वुड हैव क्योर्ड इट, बट वी वर नॉट गुड एट मेडिकल फैसिलिटीज ऑल्सो. दैट्स व्हाई ड्यू टू दीज डिजीजेस पीपल डाइड अ लॉट. Okay, then comes to low population growth, lack of healthcare facilities, water, airborne diseases, as well as lack of means of healthcare. The result was life expectancy was very low. Life expectancy means
पीपल टुडे वी कैन से दैट कि हाँ हम लोग तो 70 साल तक जिएंगे, 60 साल तक जिएंगे, आज हम बोल रहे हैं इस बात को, बट एट दैट टाइम कोई नहीं बोलता था, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा कम हो गई थी, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी, डेथ रेट बहुत ज्यादा था। उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस इतनी होती थी कि हाँ बस 44 ईयर्स तक हम लोग जो हैं जिएंगे, 44 के बाद नहीं जिएंगे। कई जगह पे इसको 38 और 32 ईयर्स भी लिखा हुआ है, अभी तो 44 बता रखा है एनसीईआरटी में। तो आगे दे रखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट was as high as 218. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स कितने इन्फेंट्स, मतलब वो बच्चे जो 1 साल से अभी हुए नहीं, 1 साल से पहले पहले, आउट ऑफ 1000 लाइव बर्ड्स, 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ। क्या रेट था हमारा? इट वॉज 218 per 1000 children died just because of low health facilities. Summarized data you can see here. Earlier literacy rate was 16%, but now at present it is 74%. Female literacy was 7% at that time, but now it is 48%. Infant mortality rate was earlier 218 per 1000 deaths. Per 1000 live births, 218 death infant mortality rate was, but now it has been reduced to only 40 per 1000. And life expectancy, earlier it was only 44 years, but now it has been increased to 68 years. Now last, it is the infrastructure. How our infrastructure was? Infrastructure, capital invested in the country that helps in the production, distribution and consumption. क्या हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा किया जिससे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन अच्छा हो? कौन कौन सी किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों ने खर्च किया? दैट मीन्स हम मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खर्च किया। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा आ जाता है रेलवेज, ट्रांसपोर्ट एंड पावर। पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर सप्लाई एंड एजुकेशन। Now, when we talk about state of infrastructure on the eve of independence, you can learn it by CARE, care, communication, air and water transport, roads and encouraged railways. Communication बहुत ज़्यादा बढ़ा था, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट बढ़ा था, बट बहुत ज़्यादा उसने हेल्प नहीं किया था, तो वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। रोड्स भी हमारी बनी थी, बट कुछ एरियाज के अंदर हमारी रोड्स भी बहुत अच्छा ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं बन पाई थी, लेकिन सबसे बेस्ट जो उन्होंने हम लोगों को, जो हमारे लिए उन्होंने किया, ऑल्दो उनका मोटिव हमारे लिए कुछ अच्छा करना नहीं था, बट इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उन्होंने हमको किया, वो रेलवेज देकर किया। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पोस्ट एंड टेलीग्राफ बनाए उन्होंने, वर मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पोस्ट और टेलीग्राफ से सबसे ज्यादा होता था। एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, आज की डेट में भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो कम्युनिकेशन और ज्यादा बढ़ गया। उस टाइम पे क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम था ही नहीं, तो तब ये उन्होंने बनाया और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ने बहुत ज्यादा हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया वहां पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड का मतलब किसी भी वेदर में आप किसी रोड पे चले जाओ, रोड खराब नहीं मिलेगी, तो ये उन्होंने बहुत कोशिश की थी इस तरह की रोड्स बनाने की, बट हाँ कुछ गांव के अंदर वो ये चीजें नहीं कर पाए थे, बट मोस्टली उन्होंने बना दी थी। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट कंस्ट्रक्ट लार्ज रोड्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ funds. The roads that were built to mobilize the army or to shift raw material from the farms, from the agricultural farms to their ports, and from that very ports they transfer these raw materials to their own industries using Suez Canal. But the shortage of roads to reach out to rural areas during the rainy season, क्योंकि all weather roads बहुत अच्छे से नहीं बना पाए थे, तो रेनी सीजन के टाइम पे रूरल एरियाज के अंदर क्या होता था, बाढ़ आ जाती थी या पानी भर जाता था, तो जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी होती थी या फेमाइन्स होते थे तो वहां के लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था। Encouraged railways. The best thing which they have given us is the railways. Britishers introduced railways in India in 1850. They introduced it in 1850. They started in 1853. Mind it, introduced in 1850 and started in 1853, and it is considered as one of the most important contribution. Helps the Indian economy in two important ways. Number one, सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने लग गए थे, जोग्राफिकल बैरियर्स जो थे कि इतनी दूर हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो वो हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। एंड द सेकेंड वन इज इम्प्रूव्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। के इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर जो भी चीज़ों हम लोग बना रहे थे वो हम उसे कमर्शलाइज कर सकें, बेच सकें दूर दूर जगह पे। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ बना था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। इनलैंड ट्रेड का मतलब इंडिया के अंदर अंदर ही अगर पानी से हम लोग कोई एक पोर्ट से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो
सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एंड वॉज कॉस्टली, वेरी कॉस्टली. इंडियन वाटरवेज प्रूव टू बी अनइकोनॉमिकल, वो इकोनॉमिकल नहीं थे, बहुत ज्यादा महंगे बन रहे थे. और एक एग्जाम्पल दे रखा है एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनाल ऑन उड़ीसा कोस्ट. उड़ीसा कोस्ट में जब बना था कोस्ट कैनाल, बहुत महंगा पड़ा था, तो इसीलिए जो है ये इसने कंपीट नहीं किया था. फेल टू कंपीट विद, कंप्लीट लिखा हुआ है वो एल गलती से है, इट इज कंपीट. फेल टू कंपीट विद द रेलवेज एंड फाइनली कैनाल हैड टू बी डिस्कार्डेड. कैनाल को उन्होंने बंद कर दिया गया. तो अब किससे ज्यादा होता था, रेलवेज से ज्यादा काम करते थे. नाउ लास्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट. क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स ने हमको हमारे ऊपर दिए थे? यस, ब्रिटिशर्स ने ऑल दो सारे काम उन्होंने अपने फायदे के लिए किए थे, बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कुछ गलत में भी कुछ अच्छा होना, उसे ये बोलते हैं कि उन्होंने हम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया था. इसको आप याद कर सकते हो BASIC करके, बेसिक करके. बार्टर सिस्टम टू मॉनिटरी सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, स्प्रेड ऑफ रेलवेज, इंक्रीजिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड चेक ऑन फेमाइन्स. फर्स्ट इज बार्टर सिस्टम टू मॉनिटरी सिस्टम. उन्होंने क्या किया, बार्टर, हमारा तो मॉनिटरी बार्टर सिस्टम था, वी एक्सचेंज कमोडिटी इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, बट दे रिप्लेस्ड इट विद मॉनिटरी सिस्टम. दे इंक्रीज्ड आवर साइज ऑफ ट्रेड, ट्रेडिंग हमारी बढ़ गई क्योंकि अब हमारे पास एक कॉमन मीन्स ऑफ एक्सचेंज था, मनी, राइट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो पहले हमारे यहाँ अलग अलग राजा महाराजा होते थे, प्रिंसली स्टेट्स होते थे, सब अपने अपने हिसाब से अपने राज्य को चलाते थे. बट नाउ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन केम फ्रॉम ब्रिटिशर्स who bring all the independent states. Independent means जो अपने आप में काम करते रहे, उनको एक कॉमन फ्रेम में ले कि सबको इसे फॉलो करना ही होगा. जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, वो जो बनाती है सबको फॉलो करना होता है, ठीक है. स्प्रेड ऑफ रेलवेज, रेलवेज बनाया. ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850 एंड दे स्टार्टेड इन 1853. Remember it. The railways enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers. ये हम लोग पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. And last, इंक्रीजिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब जो भी हम लोग एग्रीकल्चर में बना रहे थे, अब सिर्फ अपने सबसिस्टेंस लेवल के लिए नहीं बना रहे थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं कर रहे थे कि हम सिर्फ उतना बनाएं और बेचें जितने, जिससे कि हमारा घर चल सके. अब हम एक्स्ट्रा बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे और हम लोग दूर दूर तक उसे भेज भी सकते थे, तो उससे हमारी कमर्शलाइजेशन हुई, अर्निंग बढ़ी. एंड लास्ट, एंड देन इट कम्स टू चेक ऑन फेमाइन्स. चेक ऑन फेमाइन्स मीन्स जो भी अगर कहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा हो गया था, रेलवेज अच्छे हो गए थे, कि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, फेमाइन होती थी, ड्रॉट होती थी, तो हम लोग को पता चल जाता था टाइमली और हम उस जगह पे हम लोग रश कर सकते थे, पहुंच सकते थे, उनको हेल्प कर सकते थे. अब आगे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं. ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर के डेटा से रिलेटेड होंगे, कुछ नहीं होंगे. आई हैव सेंट यू नोट्स फ्रॉम द बुक ऑल्सो एंड मैनी आई हैव अंडरलाइंड ऑल्सो, आई हैव हाईलाइटेड ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. प्लीज go through those important points. Each and every line which has been highlighted is very important from the point of exam. ठीक है. नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर. इन क्वेश्चंस में भी आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी. व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस? ऑफिशियल सेंसस मींस ऑफिशियल पॉपुलेशन काउंट हम लोगों ने कब किया था? 1881 में. 1921 से पहले, ये जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे, बुक के अंदर मैंने मार्क कर रखा है, बुक का जो भी नोट भेजे हैं वो जरूर पढ़ने हैं बेटे. ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको बुक के नोट जरूर पढ़ने हैं. 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज में था. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब बनी थी? 1907 में. रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुए थे? 1850 में. अब among the following estimators whose estimates of per capita income of India during colonial period was considered very significant. देखो estimators, अब यहाँ पे देखा, ये दादा भाई नरोजी, विलियम दिग्बी, आर.सी. देसाई, वी.के.आर.बी. राव, ये सारे कौन थे जिन्होंने पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ पे एस्टिमेट की थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स. तो इनके नाम जरूर याद रखने, ये आपको आपकी बुक के पहले बनने में मिल जाएंगे आपको. इसमें कौन था कि कॉलोनियल पीरियड में भी उसको बहुत ज्यादा बढ़िया माना गया था? वो थे वी.के.आर.बी. राव. द नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर. द नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज, देखो, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सम ऑफ रेंट, सम ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ वेजेस, ये सब मिलाकर हमारी बनती है फैक्टर इनकम. तो नेशनल इनकम इज सम ऑफ फैक्टर इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ये हम आगे भी करेंगे. दिस सेक्टर जनरली टेक्स द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. ये सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट लेता है. प्राइमरी सेक्टर ने जो भी आउटपुट दिया, कौन सा सेक्टर लेता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर. और आगे क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है? फिनिश्ड गुड्स. और हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट रिप्रेजेंट विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? ये हम आगे पढ़ेंगे. सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. रेलवेज कब आए थे? 1850 में आए थे. इट हैज बीन रिपीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडियन इकोनॉमी वाज
रेलवे, सबसे बढ़िया उन्होंने क्या बनाया था, रेलवेज। पहला सेंसस कब आया था, 1881 में, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। अब ये आ जाता है, द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्यों स्टैग्नेंट था, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इन क्वेश्चंस के साथ मैं यहाँ पे अभी खत्म करती हूँ इसको। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, नोट्स जरूर बनाओ।